हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 6 जो कि ज्योग्राफी का है। इसमें आज हम करेंगे द वर्क ऑफ द मूविंग आइस, विंड्स एंड द सी वेव। इसका मतलब यही हुआ कि हिमानी पवन और समुद्री तरंगों के क्या कार्य होते हैं। तो इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये चैप्टर जो है कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई से पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड से पढ़ते हो, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो या बिहार बोर्ड के बच्चे हो। अगर उन्होंने ज्योग्राफी के चैप्टर लिया है, अगर उनके पास भी गोल है, तो इसका मतलब ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, लेकिन आपको पता है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today I have a most important chapter doing here the work of moving ice, wind and sea wave. I have also done from here the moving ice and wind. Their next topic here arrive a landform produced by the sea wave. There is a last topic here. There is a landform produced by the sea wave here. We are aware to the fact that is a water is a oceans is a near at a rest. Here, there is a rest. The tides wave is ocean current is a contribute to the restness of oceans. There are continuous of effect on the coastal create a number of relief feature. The work of sea wave as an agent of gradations on include evasion, transportation and deposition. A number of topographical features are made through this is the action of waves. Such a features are found in the coastal regions. Let us study work of the sea wave in some more detail. The first here erosion by sea wave. The sea wave have a great erosive force. In their role of the erosional agent, they are perform for a function. They are perform a for function here. When the sea water loaded with the rock fragments and the sand attack the coastal rock, it's called abrasions. The rock particle is present in the water hit against each other and break into the progressively smaller particles. This process is called adhesions. And thirdly, there is the broadenings. Broadenings is a crack and the scrapes in the slip along the coastal due to the attack of the sea wave is called hydroelectric action. The rock made of the limestone are subjected to the solution actions by their sea wave. All this is a process help in a formation of new features on the coastal margins. The next is landform produced by the sea wave erosion. The wave like a stream eroded of coastal rock with the help of the rock fragments present in the water. Due to the continued erosions by the waves, the coastal lines keeps retracting and number of topographical features are formed in the process. Some of the important features made through the sea wave erosion and mentioned here. The first here, sea cliff. The sea cliff here, the maximum impact of the sea wave is absorbed on the lower part of the coastal rock and consequently there is a lower part of the rock is eroded is a more rapidly than the upper part. This result in the formation of the hollow under to rock and with their passage of the time the
excavations in the lower part of the rock keep on becoming larger. Here show the sea cliff. There is a cliff here this side and body grabs sand here and the sea. The analysis as a growing here. There is the most important diagram here show. The upper part of the rock is thus the left projecting out to about the sea. After some time, this projecting part fall into the sea under its own weight. As a result, a vertically wall is left. This vertically wall is called a cliff. In India, a number of sea cliffs are found along the Konkan coastal of India. There is a most important. And next point here, sea caps. Sea caps here, when the upper part of the coastal rock is hard and the lower part is very soft. The erosion is not uniform. The lower part of the rock is such as a circumstance is eroded much faster than to the upper part. Due to the differentially erosion is a hole is created in the lower part of the rock. When the wave found against the hollow airs present in the hollow get compressed. When the wave come out of the hole, there is a pressure on the air is also released and it is expanded. Due to the continued compressions of the air in the hollow, there is a rock are subjected to the great pressure and the break. In this process, the hollow is the lower part of the rock keep on the enlarging with passage of the time they are tend to form of caps and they are known as the sea cap. Formation of the cap depend upon the nature of the coastlines and force of the wave. There is the most important. An important here, sea arches. When a part of coastal extends to the same distance into the sea and the sea wave working from a opposite direction and cut a path through the soft rock. In the initially stage, the passage is a narrow hall, but it is a enlarged into the bordered arch. These bordered doors, like a feature, is called either sea arches or natural bridge. There is a most important sea arches. The next here, sea track. When the roof or on the arch is broken by erosion or under its oven weight or due to any other reason, a part of the original rock remain standing as the solitary marks. It may be the rock forming the side of arch. This type of feature is called a sea stack. Stacks are of a number of types depending upon their shape and the nature of the rocks. Sometimes they take the shape of islands, but such islands are not permanent. A small underwater stock known as the stumps. Here they show the diagram a topographical feature made through their wave erosion. There is a most important. Here show the stacks, stumps. There is the wave, natural arts. There is the most important diagram here. The next here, a transportation by sea wave. Sea wave is the currents or tides are main agent of transportation of the eroded material in the coastal region. However, the role of wave is more important in the connection with the formation of coastal relief features. The materials deposit on the coastal by the rivers and glacier, etc. It is removed and transported by the wave. Transportation by the sea wave is carried out in the two ways. The first year, removal and transportations and toward the sea and of the materials deposited by the rivers etc. on the coasts. And second year, carrying of the materials found in the sea to be a coastal area. During this process, the ocean's materials like is a pearls, conches and other shaded through there to the coastal. There is the most important pearls here. The next here are deposition by the sea wave. The sea wave are helpful in the deposition of the material eroded from the coastal area. Oceanic sequent are there also helpful in the deposition of the transported material. Deposition of the materials along the coastal is selective.
The large particles are deposited first, therefore they are found near the coasts. On the other hand, the finished particles are deposited the last and they are deposited generally away from the coast. This selective deposition is sometimes altered to the affected by a change in the intensity of force of the wave. Thus, it is sometimes possible to find a very fine particle deposited near the coastal where generally large particles are deposited. A number of the topographical features are formed due to the deposition by wave and current. Some of the topographical features are discussed here. The first here, beach. The most of the materials eroded and picked up by the wave is a deposit near the coast. Due to this deposition, the sea becomes shallow and a part of the coastal area is rising above the water level. This arise is a protection is almost like a flat plan of the platform formed of the graves and sand. This type of depositional feature along the coast is called a beach. The beaches are center of the tourist attraction. The beach are centers of tourist attractions. The Marians Beach of their Chennai and Columbus Beach of the Thiruvananthapuram are the famous beach of the India. There is the most important for UPC exam. There is the Marine Beach here found at the Chennai, and the Kovalam Beach is found at Thiruvananthapuram. That is the most important here. The next year, sandbar. Sometimes the deposit of the sand and graves let down by the wave and current from to embankment is the separating shorelines from the sea. They thus the very barriers between the sea and the mainland. Such a deposit are called sandbar. They sometimes is pose a difficulty in the is navigating. Here show the diagram a sandbar and spirit. There is the most important diagram show the is a ballistic sea and spirit and gustodons dashing and erosions bar the lagoons and the lagoons is a memoir. There is a sandbar is a spirit is the most important here. The next here is speed. Speed here when one end of the bar is attached to the coast and other extend into the sea. It is a call to the spirit. These spirits are formed by the accumulation of the material both by the wave like sand and grab. That is the most important here. The next is a lagoon. Lagoon here, sometimes due to the deposition of the wave and currents, both the end of the bar join to the enclosed part of the sea water between to the coast and the bar. This enclosed part of the sea from a lake of saline water, and this saline water lake is called a lagoon. Here show the diagram of the map showing the famous lagoon of India. That is the most important here. Is a Pickles Lake, India, Arabian Sea, Bay of Bengal, Checkers Lake, and there is a Berbanth Lake and the Kerala Tamil Nadu. There is the most important. So here the lagoons in India. Sometimes the lagoons are formed due to the wave of erosion also. That is the most important. Sometimes lagoons are formed due to the wave erosion also, and the lagoon is a generally is the connected with the sea through a narrow passage. The Chilka and is a public lake on the northern eastern coastal lake is the Bambolim and the Corals coastal are example of the lagoon lake in India. That is the most important here. The Bambolim and Corals is a coastal are example of lagoons lake of India here. And here a topographical feature like beaches, bar, spirit and lagoons are formed by the action of wave. There is a most important here feature, topographical feature here, beaches, bar, spirit and lagoons are formed by the action of wave. हम जो यहाँ पर कर रहे हैं अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर हिमानी पवन और समुद्री तरंगों के कार्य,
और इसके अंतर्गत जो है हमने 2 पाठ कर लिया है, हिमानी और पवन। अब जो हम करने जा रहे हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है, समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित असल कृतियाँ। देखिए, समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित असल कृतियाँ की क्या विशेषताएं होती है, ये जानना हमारे लिए बहुत रोचक रहेगा। कहते हैं, हम जानते हैं कि समुद्र का जल कभी स्थिर नहीं रहता है। ज्वार भट्टों और तरंगों तथा समुद्री धाराओं के कारण समुद्री जल में जो हलचल मची रहती है, यानी समुद्र में देखोगे तो सदैव हलचल मची रहती है। कारण क्या है? समुद्र जो है सभी नदियों का जो है उद्गम स्थान है, और कहते हैं कि ये सारे स्थानों पर ये मिलता है। अगर देखा जाए, अगर पहाड़ के क्षेत्रों से अगर पानी का जल धाराएँ बनती है तो सब के सब जो है समुद्र में जाके ही विलीन हो जाती है। तो देखा जाए तो समुद्र में हर तरह से जो है हर चीज़ की अवसादों को जो है लेके भरा पड़ा है, यानी बहुत मायने में समुद्र जो है इम्पोर्टेंट रखता है। तो यही बात यहाँ बताया गया है कि अगर उद्गम स्थान अगर हम मानते हैं हिमालय से पानी की अगर जाता है तो इसका जो है मिलन स्थान हम जो है समुद्र को कह सकते हैं। इसके निरंतर प्रभाव से समुद्र तट पर जो है अनेक स्थलकृतियाँ बन जाती है। तो जनरल सी बात है, पानी की धाराएँ अगर आएगी तो स्थलकृतियाँ बनना एक स्वाभाविक बात ही रहेगा। तथा जल संतुलन के कारण कारक के रूप में तरंगे भी अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण कार्य करती है। देखिए, तरंगे भी वही 3 कार्य करती है, अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण कार्य करती है, जैसे सभी कर रहे थे। तरंगों में के इन कार्यों से जो है अनेक संस्कृतियाँ तटीय प्रदेश में पाई जाती है। तो आइए अब हम समुद्री तरंग के इन कार्यों का जो है कुछ विस्तार पूर्वक अध्ययन करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हमारे समक्ष है समुद्री तरंगों द्वारा अपर्दन कार्य। ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि समुद्री तरंगों में अपर्दन की अपार शक्ति होती है। अपर्दन के कारक के रूप में ये 4 क्रिया करती है। समुद्री जल एवं अपने साथ कंकड़, पत्थर और बालू को लेकर तटीय भूमि को काटती रहती है। तो इस क्रिया को जो है अपघर्षण कहते हैं, यानी कंकड़ों पत्थरों द्वारा जो है तटीय भूमि को काटना जो है अपघर्षण कहलाता है। और समुद्री जल में विद्यमान शैल कण आपस में टकरा कर टूटते फूटते रहते हैं। आपस में टकराएंगे तो टूटेंगे और फूटेंगे, तो जनरल सी बात है। और ये छोटे छोटे कणों में बदलते रहते हैं। इस प्रक्रिया को जो है हम संघर्षण कहते हैं, यानी टूटने फूटने छोटे कणों में बदलने की प्रक्रिया को हम जो है संघर्षण कहते हैं। समुद्री तट के जो है गुफाएं, क्लिफ के चारों तरफ छिद्रों के एक समुद्री तरंगे जो है अपने प्रवाह से चौड़ी करती रहती है। इसे हम जल चलिता क्रिया कहते हैं। चूने के शैलों से बनी तटीय भागों में तरंगे अपनी घोलन क्रिया द्वारा ये घुला देती है, और इस प्रक्रियाओं से तटीय प्रदेश में नई संस्कृतियों के निर्माण में काफ़ी सहायता मिलती है। अगर हम पॉइंट की बात करें यहाँ पर, तो कहते हैं समुद्री तरंगों के 3 प्रमुख कार्य हो गए, ये तो आपको पता ही होगा, अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण। और दूसरी बात यही कहता है कि अपघर्षण, संघर्षण, जल चलिता प्रक्रिया समुद्री तरंगों के अपर्दन कार्य में काफ़ी सहायता करते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष समुद्री तरंगों द्वारा अपर्दन से बनी स्थलकृतियाँ। अब देखिए, समुद्री तरंगों के द्वारा अपर्दन से बनी स्थलकृतियाँ कैसी होती है। कहते हैं अगर नदी के तरंग भी जल में विद्यमान शैल खंडों की सहायता से शैलों के अपर्दन करती है, तो तरंगों द्वारा किए गए लगातार अपर्दन कार्य के द्वारा जो है तटरेखा पीछे हटती चली जाती है, और इस क्रिया में अनेक संस्कृतियों का निर्माण होता है। और इसमें से कुछ प्रमुख संस्कृतियों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो देखते हैं हमारा पहला जो है समुद्री तरंगों द्वारा अपर्दन से बनी संस्कृतियाँ क्या है। हमारे समक्ष जैसे कि आ गया है समुद्री भगु। समुद्री भगु क्या है? समुद्री तरंगों का सबसे अधिक प्रभाव तटीय प्रदेशों के निचले भागों में पड़ती है। ठीक है, निचले भागों में पड़ना है, स्वाभाविक बात है। परिणाम स्वरूप से लोग के जो निचले भाग हैं ऊपरी भागों की तुलना में जल्दी जो है कट जाते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि शैलों के निचले भागों में खांच बन जाती है। जब खांच बनती है तो तरंगों के लगातार प्रवाह से चौड़ी और गहरी होती चली जाती है, और शैलों के ऊपरी भाग समुद्र की ओर लटक रह जाता है, यानी समुद्र के ऊपरी की ओर ये लटक रह जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कालांतर में शैलों का यह लटका हुआ भाग अपने ही भार के टूटकर समुद्र में गिर जाता है, यानी लटका हुआ भाग जो है टूटकर समुद्र में गिर जाता है। परिणाम स्वरूप शैलों की एक ऊर्ध्वाधर दीवार खड़ी रह जाती है, और इस दीवार की जो है भंगु कहते हैं, यानी ऊर्ध्वाधर की दीवारों की को जो हम
भंगु कहते हैं। और भारत के कोनेकन तट पर अनेक समुद्री भंगु पाए जाते हैं। देखिए, भारत के कोनेकन तट पर जो है अनेक भंगु पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि समुद्री भंगु जो है बने हुए हैं, जिसमें आप साफ शब्दों में देख सकते हो खांचे जो बने गए हैं, कुटका बन गए हैं, सेलखंड बन गए हैं और रेत की जो है बिछा हुआ है। और इसके पास आप देख सकते हो कि समुद्र की लहरें जो है इस पर प्रभाव डाल रही है। तो ये डायग्राम भी आपको काफ़ी कुछ समझाने के लिए पर्याप्त है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है समुद्री गुफाएं। कहते हैं समुद्री गुफाएं, ये भी बहुत रोचक वाली बात लग रहा है कि जब समुद्री तट की जो है शैलों की ऊपरी भाग कठोर हो और निचली भाग मुलायम हो तो अपरदन सब जगह एक सामान्य नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में शैलों का निचला भाग ऊपरी भाग की अपेक्षा बड़ी जल्दी कट जाती है। असामान्य अपरदन के कारण शैलों का निचला भाग खोखला हो जाता है और तरंगे जब इस खोखले भाग पर प्रहार करती है तो खोखले स्थान में भारी वायु दाब बन जाती है और यह फैल भी जाती है। खोखले भाग पर वायु के निरंतर दबाव पड़ने से शैल जो होती है टूट जाती है और इस प्रक्रिया में शैलों के निचले भाग के ये खोखले स्थान बढ़ते ही रहते हैं। कहते हैं कालांतर में ये गुफाएं का रूप ले लेते हैं धीरे धीरे, यानी काफ़ी समय के बाद ये गुफाओं का रूप ले लेते हैं। आपने देखा भी होगा कि समुद्र के किनारे जो है बड़े बड़े चट्टान से जो है गुफाओं का निर्माण होना एक स्वाभाविक बात है, जिन्हें हम समुद्री गुफाएं कहते हैं। इन गुफाओं का निर्माण तट की जो है प्राकृतिक और तरंगों की शक्ति पर निर्भर करता है, किस प्रकार के वहाँ पर तरंग उठ रही है। उसके पश्चात हमारे समक्ष समुद्री मेहराब। आखिर समुद्री मेहराब क्या है? जब तट का कोई भाग कुछ दूर तक समुद्र में चला जाता है तब विपरीत दिशा में आने वाली तरंगें मुलायम शैल के आर पार छेद बना देती है। आरंभ में ये छेद छोटा होता है लेकिन कालांतर में यह छेद बहुत बड़ा होकर एक मेहराब बन जाता है और इन चौड़ी और दरवाजे जैसी स्थलाकृतियाँ को समुद्री मेहराब या प्राकृतिक पुल कहा जाता है। ये बहुत बड़ी बात इंपॉर्टेंट है। मेहराब बनना एक स्वाभाविक बात है और ये छोटा सा छेद जो होता है धीरे धीरे बड़ा बन जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष समुद्री स्तंभ। देखिए, समुद्री स्तंभ क्या है? जब मेहराब की छत अपरदन के द्वारा या अपने ही बोझ से या अन्य किसी कारण से टूटकर गिर जाती है तो मुख्य शैल का एक भाग अलग खड़ा रहता है और यह मेहराब को बनाने वाले शैल का एक पार्श्व भी हो सकता है। ऐसे संस्कृतियों को समुद्री स्तंभ कहते हैं, यानी ऐसा बना हुआ आकृति को जो होता है समुद्री स्तंभ कहलाता है। और शैलों की जो है प्राकृतिक और अपनी जो है आकृति के आधार पर समुद्री स्तंभ कई प्रकार के होते हैं। कभी कभी तो ये द्वीपों का रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन ऐसे द्वीप स्थायी नहीं होते हैं और समुद्री जल में डूबे छोटे छोटे स्तंभों को जो है ठूठ कहते हैं, यानी जो छोटे से स्तंभ होते हैं उसको ठूठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो कि हमने जितने भी बात पढ़े हैं तरंगापरदन द्वारा बनी स्थलाकृतियाँ। देखिए, प्राकृतिक मेहराब आपको दिख रहा होगा, तो ये जनरल सी बात है मेहराब बनना। यहाँ आपको स्तंभ भी दिख रहा होगा, स्टॉप भी दिख रहा होगा और निचला ज्वार भी दिख रहा होगा। तो यही जो है प्राकृतिक मेहराब बनना समुद्र के पास एक जो है एक विशेष घटना होती है जो आपको हर एक क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा समुद्री किनारों में। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है समुद्री तरंगों द्वारा परिवहन। कहते हैं समुद्री तरंगे धाराएं और जो है ज्वार भट्ट तटीय प्रदेश में अपरदन से प्राप्त पदार्थों के परिवहन के प्रमुख कारण है, लेकिन तटीय स्थलाकृतियों का निर्माण में समुद्री तरंगों का कार्य अधिक महत्वपूर्ण होता है। नदियों और हिमानियों द्वारा समुद्र तट पर जो है जमा किए गए पदार्थों का परिवहन तरंगों द्वारा ही होता है। तरंगे परिवहन का कार्य दो प्रकार से हो सकती है और ये दो प्रकार क्या है देखते हैं। एक तो हमारे समक्ष है नदियों तथा अन्य कारकों द्वारा समुद्री तट पर लाए गए पदार्थों की तरंग समुद्र में बहकर ले जाती है। आपको पता ही है कि समुद्र जो है बहुत विस्तृत है और इसके साथ जो है कई तरह के जो है मटेरियल आना एक स्वाभाविक बात है। समुद्र से प्राप्त पदार्थों के तरंगे पर ले जाते हैं और इस प्रक्रिया के द्वारा ही समुद्र पदार्थ जैसे मोती, शंख और शिप आदि जो है समुद्र तट पर आ जाती हैं। अगर बात हम यहाँ करें समुद्र तरंगों के परिवहन कार्य से समुद्र तट पर जमा हुए पदार्थ समुद्र में चले जाते हैं और समुद्र से प्राप्त पदार्थ तट पर आ जाते हैं।
उसके पश्चात हमारे समक्ष समुद्री तरंगों द्वारा निक्षेपण। देखिए समुद्री तरंगों द्वारा निक्षेपण कैसे होता है। समुद्री तरंगों तटीय जो है क्षेत्रों के अपरदन से प्राप्त पदार्थों के निक्षेपण में काफ़ी सहायता करती है और इस निक्षेपण कार्य में तरंगों के साथ साथ समुद्री धाराएं भी काफ़ी मदद करती है। तट के पास पदार्थों के निक्षेपण का एक क्रम होता है। सबसे पहले बड़े शैल खंडों का निक्षेपण होता है, अंत वह तट के निकट पाए जाते हैं क्योंकि जो जितना पास होता है उस पर उतना ही अधिक प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर सबसे महीन कणों का निक्षेपण सबसे बाद में होता है, अंत वह सामान्यतः तट से दूर जमा होता ही रहता है। तरंगों की तीव्रता और शक्ति में अंतर आ जाने के कारण निक्षेपण का क्रम प्रभावित होता है। समय तरंगों धाराओं द्वारा पदार्थों के निक्षेपण से अनेक संस्कृतियों बन जाती है। इनमें से कुछ विवरण नीचे दिया गया है। चलिए देखते हैं कि समुद्री तरंगों और धाराओं से कौन कौन से बनते हैं। सबसे पहले तो है बीच यानी बालू तट। समुद्री तरंगों द्वारा तट के अपरदन से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं वो सामान्यतः तट के निकट ही जमा हो जाते हैं और इस निक्षेपण के कारण तट के आसपास का क्षेत्र उथला होकर पानी के जो है बाहर आ जाता है और बालू के कंकड़ और बजरी का लगभग समतल मैदान सब बन जाता है। तट के पास निक्षेपण से बनी इस संस्कृतियों के बीच या बालू तट कहते हैं और ये बीच जो है बालू तट पर्यटकों के लिए आकर्षण के केंद्र होते हैं। चेन्नई का जो है मरीना बीच जो है त्रिपुरम का जो है कोवलचे बीच भारत के प्रसिद्ध बीच में से माना जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है बालूरोधिका। बालूरोधिका क्या है। कभी कभी समुद्र तट के निकट तरंगों और धाराओं के निक्षेपण कार्य द्वारा बालू और बजरी के तटबंध बन जाते हैं जिससे तट रेखा समुद्र से अलग हो जाता है। अंत वह मुख्य भूमि और समुद्र के बीच अवरोध बन जाते हैं। इस प्रकार के निक्षेपों को ही बालूरोधिका कहते हैं और यह कभी कभी समुद्री यातायात के लिए कठिनाई पैदा कर देते हैं, जैसा कि यह चित्र में भी दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बालूरोधी या जुही शिफ्ट आपको दिखाई देगा, यानी भुजिया, मेमेल, लेगून, रोधिका और लेगून। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिसको हम यहाँ समझ सकते हैं। कहते हैं उसके बाद हमारे समक्ष आता है भुजिया यानी शिफ्ट। जब रोधिका का एक छोर तट से जुड़ा हुआ होता है और दूसरा छोर समुद्र की ओर निकला रहता है तो इसे हम स्विफ्ट कहा जाता है और इस जो है जीवरीजू का निर्माण तरंगों द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे बालू और कंकड़ों के एकत्र होने से ऐसा संभव होता है। अगर हम बात करें लेगून की तो लेगून जो है कभी कभी समुद्री तरंगों और धाराओं के द्वारा निक्षेपण से रोधिका के दोनों ओर छोर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और समुद्री जल का कुछ भाग तट और रोधिका के बीच गिर जाते हैं। समुद्र का यह गिरा हुआ भाग खारे पानी की एक झील बन जाती है। खारे पानी की झील को लेगून कहते हैं और कभी कभी इसका निर्माण जो है तरंगों के अपरदन कार्य के द्वारा भी होता है। लेगून सामान्यतः एक संकरे मार्ग द्वारा समुद्र से भी जुड़े हुए होते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी तट पर जो है चिल्का और पुलिकट झील और केरल की जमनाडा झील लेगून के सबसे अच्छे उदाहरण में से माने जा सकते हैं। समुद्री तरंगों के निक्षेपण कार्य से जो है पुलिन, रोधिका, जुआ और लेगून नामक संस्कृतियों का निर्माण होती है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारत के प्रसिद्ध लेगून, भारत कई क्षेत्रों में लेगून जो है देखने को मिलेगा, चाहे पुलिकट झील हो, बंगाल की खाड़ी हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, बेनारस झील हो, तो ये सारे के सारे जो है भारत के प्रसिद्ध लेगून हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी ज़रूरी भी है। दोस्तों इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ जाना और ये हमारे लिए काफ़ी पर्याप्त थी। ठीक है, तो ये इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। अगला चैप्टर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो अगला चैप्टर देखना मत भूलना। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट रहता है कि पहला ये कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने तिरपान सेंटर का हेल्प करना है। दूसरी बात यह है कि पहली बार वीडियो देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब करके सेव करना भी जरूरी है, तभी जो है आगे आपको जो है अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर सेव नहीं कीजिएगा तो आप जब भी रिसर्च कीजिएगा कोई भी जो है टॉपिक, तो आपको तिरपान सेंटर द्वारा बनाया गया टॉपिक प्राप्त नहीं होगा, उस जगह वो टॉपिक प्राप्त होगा जो पहले से यूट्यूब पे मौजूद है। अगर आपको तिरपान स्टडी सेंटर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके रखने में ही समझदारी है।